تو اگر ان کے کارکنان آگے بڑھے پی ایم ہاؤس کی طرف بڑھے، آپ پی ٹی آئی کے کارکنان کا کیا رد عمل ہوگا؟ انشاءاللہ ہم بھرپور دفاع کریں گے عمران خان کے ساتھ. ہم عمران خان کے لیے ہر خون کی قربانی کی دینے کے لیے بھی تیار ہے. عمران خان سچا ہے، اس وجہ سے اس کے پیچھے یہ لگا ہوا ہے. تو 2 دن کی مہلت میں کچھ نہیں ہوتا. یہ تو مکان بھی خالی کرانا ہو تو 1 مہینہ پہلے بتایا جاتا ہے. تو یہ تو 2 دن کی مہلت دے رہا ہے وزیر اعظم کو اٹھانے کے لیے. تو اس کی ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ کہ کون اس کو چلا رہا ہے. مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مولانا صاحب کو چاہیے کہ غریب لوگوں کو نہ تنگ کریں. یہ لوگ آئے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کیوں دھرنا دے رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. آپ انٹرویو کریں لوگوں کی، ان کو پتہ بھی نہیں کیا ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. یہی بات. لیکن بس مولانا فارورڈ ہیں، مدرسے کے بچے لے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا تو یہ مروائیں گے بس لوگوں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ بتائیں، مولانا صاحب نے ابھی بیان دیا کہ اب حکومت ہم چلائیں گے، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، تو کیا کہتے ہیں اس سوال میں؟ اس نے پچھلی 40 سال سے مسلسل ہر گورنمنٹ میں چلایا تو کون سے تیر مارے ہے کہ یہ اس کا باپ بھی اس کو نہیں ہلا سکتے. عمران خان ہمارا ہیرو ہے. بے شک ابھی مہنگائی ہے، سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں آگے کام کرنے کے لیے، لیکن مولانا میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو گرائے. اتنا ہمت ہی نہیں ہے اس میں. مولانا صاحب نے عمران خان کو 2 دن کی مہلت دی تھی، آج وہ مہلت بھی ختم ہو جائے گی. اس کے آگے کیا کریں گے وہ؟ کیا وہ حکومت گرا سکیں گے؟ حکومت تو نہیں گرا سکتے. مجھے لگتا ہے کہ پنٹی لگ جائے گی بس. اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا تھا، اگر ہم چاہیں عمران خان کو گھر سے جا کر گرفتار کر لیں، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وہ گھر سے صرف مرغی گرفتار کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے، وہ بھی کسی اور کے گھر سے نہیں. یہ تو وزیر اعظم ہے. تو اگر ان کے کارکنان آگے بڑھے پی ایم ہاؤس کی طرف بڑھے، آپ پی ٹی آئی کے کارکنان کا کیا رد عمل ہوگا؟ انشاءاللہ ہم بھرپور دفاع کریں گے عمران خان کے ساتھ. ہم عمران خان کے لیے ہر خون کی قربانی کی دینے کے لیے بھی تیار ہے. مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کس کے بارے میں؟ مولانا صاحب کے بارے میں. مولانا صاحب بس خالی بونگتا رہے گا. پچھلے 40 سال ہر گورنمنٹ میں اس کے ساتھ وزیر بھی ہوتے سر. آج تک اس نے کوئی ایسا کام بتاؤ کہ اس نے کیا ہو. یہ سب کھائے پیے. خود ہی اس دن بولے کہ ڈپر چور ہے سارا، تو اس کا منہ کا اقرار ہے. کون سا ڈبر؟ ابھی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب گاؤں کا سارا چور کٹھا ہو جائے نا تو سمجھو کہ تھانہ دار ایماندار آیا ہے، اور جب ملک کا سارا چور کٹھا ہو جائے تو یہ سمجھو کہ حکمران ایماندار آیا ہے. مولانا صاحب کو یہی چلنا چاہیے. کہتا ہوں میں کہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مولانا ہیں، آپ اپنے آپ کی اگر تھوڑی بہت معاشرے میں عزت بنی ہے تو آپ عزت سے چلیں. آپ کے لیے یہ بہترین آپشن ہے، کیونکہ آپ 14 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو آپ نے 14 باتیں نہیں کی، تو اب آپ کو سیاست یاد آ گیا، اب عمران خان کی عمر یاد آ گئی. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اب وہ سوگر کہاں تھے 14 سال کشمیر کمیٹی کا ایک بندہ چیئرمین ہے، وہ کشمیر کے بارے میں 14 باتیں نہیں کرتا، اب اس کو کشمیر بھی یاد آ گیا، باقی باتیں بھی یاد آ گئی. ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایسے چلے جائیں گے؟ آپ ان کو بھگا کے دکھائیں گے. وہ دیکھتے رہنا کیسے بھگاتے ہیں. وہ بھگانا ان کا مسئلہ ہے، وہ بھگا لیں گے. ان کے یہ جو کر رہے ہیں نا، ان کے لیے صبح شام دیکھنا کیا آپشن باہر آ رہا ہے. شکریہ. اب عدالت جو ہے نا فیصلہ ان کے حق میں کرے گی نا. کل تو ریٹ کرنے جا رہے ہیں نا، جج بیٹھے ہوئے ہیں. جج اتنے سنجیدہ جج ہیں، ہمارے قوم کے ہیرو ہیں. وہ ایسے تو ناانصافی والی بات تو عدلیہ کرتی نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کرتی ہے نہ ہائی کورٹ کرتی ہے. وہ تو انصاف دیتے ہیں، تو انصاف ملے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا کہ اب حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، حکومت ہم چلائیں گے. عمران خان کو 2 دن کی مہلت دی تھی، وہ بھی آج ختم ہو جائے گی، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ تو کتنے بات کر رہے ہیں، جھوٹ کر رہے ہیں. اس کا ایک بات بھی سچا نہیں ہے. عمران خان سچا ہے، اس وجہ سے اس کے پیچھے یہ لگا ہوا ہے کہ یہ حکومت چھوڑ دے. دھرنا کرنے کس موضوع میں کرنے؟ دھاندلی کی ہے، کون سے حلقے میں کی ہے، یہ آپ کو کھولے گا. یہ کون سی عدالت میں تم گئے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی چیلنج کیا کہ آؤ میں الیکشن سیٹ چھوڑتا ہوں، آؤ دوبارہ الیکشن دار. بالکل بالکل یہ ایسے ہو سکتا ہے. پھر بھی مولانا فضل الرحمان ہار جائے گی. ہمارے ہمت میں لوگ میں اتنا طاقت ہے کہ عمران خان ہارے گا نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب استعفے کے لیے آج ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، آج آگے بڑھیں گے، تو کیا کہتے ہیں اب اس حوالے سے؟ یہ منہ کی بات ہوتا ہے، اصل چیز دل میں ہوتا ہے. اس کا دل اور ہوتا ہے، منہ اور ہوتا ہے. اس کا دل میں سچ آتا ہے نا تو پھر اس کا بات صحیح. یہ تو کتنا عرصہ ہو گیا یہ کشمیر کا اسمبلی کا ممبر تھا، ڈیزل کا ممبر تھا، ٹھیک تھا نا. تو اس کا کام یہ نہیں ہے جاؤ جماعت میں بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو، تلاوت کرو. تو کیا وہ عمران خان صاحب سے استعفیٰ لے سکیں گے؟ نہیں لے سکتا ہے، نہیں لے سکتے عمران خان سے استعفیٰ. ہاں یہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے
जो बयान दिया कि हम इमरान खान को उसके घर से जाकर गिरफ्तार कर लेंगे, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? ये तो वज़ीर आज़म है, हम खुद मुल्ज़िम है, घर में बैठे हैं, मुझे कोई नहीं गिरफ्तार सकता है। ये तो वज़ीर आज़म है, किस तरह ये गिरफ्तार सकता है? ये झूठ बोलता है। ठीक है, तो अगर मौलाना साहब के कारकुनान आगे की तरफ बढ़े, आपके पीटीआई के कारकुनान का क्या रद्द अमल हो? ये वज़ीर आज़म है, ये भी फुल पावर है, ये इसके पीछे जाएगा तो ये भी तो चूड़ी तो नहीं पहने इसने, ये भी अपना रद्द अमल करेगा ना। खाना भी उसका नहीं मिलता। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? खाने का ज़रूरत है, उसका खाना भी नहीं मिलता। इमरान खान ने बोला खाना हम देगा। नहीं, तो मौलाना साहब ने जो कहा कि हम 2 दिन में इमरान खान से इस्तीफ़ा ले लेंगे, इस्तीफा वो नहीं दे, वो देने का तैयार नहीं है। नहीं तो क्या वो ले सकेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि अब हुकूमत हमारे हाथ में होगी, हुकूमत हम चलाएंगे, और उन्होंने हुकूमत को 2 दिन की मोहलत दी थी कि इस्तीफ़ा दें। आज वो मोहलत भी ख़त्म हो जाएगी, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरा तो ख्याल ये है कि ये गैर जमहूरी रवैया है मौलाना फजल रहमान का। उसके पास 8 सीटें हैं, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है उनके बैठने की। तो इस तरह अगर घूमते जाने लग गए तो फिर तो कल को मैं भी 20,000 बंदा ले आऊँगा, कल तैरुल कादरी भी आ जाएगा, और भी कोई आ जाएंगे। तो इस तरह घूमते जाने लगे तो 2 दिन की मोहलत में कुछ नहीं होता है। तो मकान भी खाली कराना हो तो 1 महीना पहले बताया जाता है, तो ये तो 2 दिन की मोहलत दे रहा है वज़ीर आज़म को उठाने के लिए। तो इसकी हमारी समझ से बाहर है ये कि कौन इसको चला रहा है। पहले फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहा था, फ़ौज ने भी क्लैरिफिकेशन दे दी है अपनी। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा, इसको अब आगे पीछे नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो ये चाह रहा है कोई शायद कोई बंदे शहीद हो जाएं तो फिर ये वरना कैंसिल कर दे, तो आराम से शायद इज्जत से चला जाए, वरना इसके आमने सामने कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो 2 दिन की मोहलत दी थी, आज मोहलत ख़त्म हो जाएगी। अगर ये आगे डी चौक की तरफ, रेड जोन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए तो फिर क्या सूरत हाल होगी इसमें? मेरा ख्याल है इनको जाने दिया, रेड जोन में भी क्या कर लेंगे ये, इनको वहाँ तक ही जाने दें, देखें कितने दिन बैठते हैं। ये इतने दिन बैठ नहीं सकते, लेकिन शायद रेड जोन में हुकूमत ना जाने दें क्योंकि मुआहदा किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो अगर मौलाना मुआहदे तोड़ेंगे तो फिर आम बंदे का क्या होगा ये। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बयान दिया कि अगर हम चाहें तो इमरान खान को जाके घर से गिरफ्तार कर लें। ये बस ये तो ऐसे उठपटांग वाली बात है ना, इस तरह गिरफ्तार होने लग जाए तो फिर क्या बात है। इस तरह कौंसिलर में गिरफ्तार होता, तो ये वज़ीर आज़म को कह रहे हैं। यही तो बता रहा हूँ कि ये गैर जमहूरी रवैया है, सिर्फ ये हुकूमत से बाहर है, तो इसलिए इसको ये लगी हुई है, तड़फने लगी हुई है, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि अब हुकूमत हमारे हाथ में होगी, हुकूमत हम चलाएंगे, और जो 2 दिन की मोहलत दी थी वो आज ख़त्म हो जाएगी, आज रात को। तो क्या कहते हैं इस हवाले से? ये मौलाना जो है ना ये ड्रामे कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ना हो तो इमरान खान इसको इस्तीफ़ा देता है, ना ये उनसे ले सकते हैं। ये गैर आइनी आया है और गैर जमहूरी आया है, इसके पास कोई जवाब पैदा ही नहीं होता। जो जवाब वो तो आया था, कोई उसके पास कोई ऑप्शन था, अब इसके पास कौन सा ऑप्शन है? ये कैसे कोई इसको इस्तीफ़ा देगा? वो नहीं देगा कभी भी इस्तीफ़ा। और दूसरी बात जो इसने रियासत के बारे में गैर आइनी बात की है, कल वो अदालत में जा रहे हैं, इसके खिलाफ FIR कटे जाएगी और आगे जो कानूनी अमल होगा वो लाजमी करेंगे। तो अभी इसको चाहिए कि इज्जत से चला जाए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है। न जाए तो फिर आप देख लेना कि हुकूमत तो पावर में है, वो तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो जो उन्होंने बयान दिया कि 2 दिन में इस्तीफ़ा लेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। ये ऐसे उसका एक फ़लसफ़ा है कि इससे उसको अवाम को देख कर जज्बात लोग इकट्ठे हुए थे, उसके जज्बात आ गए, जज्बात में से बात तो ये क्या डाली, लेकिन ये बात उसके गले में पड़ गई है। ठीक है, तो जो उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें वज़ीर आज़म को उसके घर से जाकर गिरफ्तार कर लें, तो ये तो गैर आइनी गैर कानूनी बात की है ना, इसमें तो वो फंस चुके हैं। यही तो उनके गले की रीढ़ की हड्डी बन गई उनके लिए। ये तो बात ही गलत है ना। अब क्या एक वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आया है, अब वो हुक्मरानी कर रहा है, तो ये उसको जाकर गले घर से पकड़ के ला सकती हैं। इनकी पावर इतनी इनकी ज़रूरत है, लाए ना, फिर उसको दिखाएं ना, उसको हाथ भी लगाएं जब कोई जाने भी देता है इनको। ऐसे इनकी बातें ही हैं बस। ठीक है, मौलाना साहब ने बयान दिया कि हमारी शराफत का फ़ायदा ना उठाएं, अब हम हुकूमत गिरा के दिखाएंगे। हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। मौलाना जितना मर्जी जोर लगा ले, हुकूमत नहीं गिरती ऐसे, बातों से नहीं गिरती। किसी बात पे कोई बात हो तो फिर गिरने की बात भी बनती है, ऐसे मुमकिन नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि अब हुकूमत हमारे हाथ में होगी, हुकूमत हम चलाएंगे। उन्होंने हुकूमत को 2 दिन की मोहलत दी थी, वो आज ख़त्म हो जाएगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें। तो क्या कहते हैं इस सवाल से? अभी तो बहुत मुश्किल सवाल है, ये इस्तीफ़ा देना बहुत लंबा काम है, इस तरह नहीं हो सकता एकदम इस्तीफ़ा। ठीक है, तो क्या ये जो मौलाना साहब बैठे हैं, ये इनका बेकार होगा ये बैठना? नहीं, बैठना चलना तो इनका अपने मंशियात है ना, वो इमरान साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जो इस्तीफ़े की इन्होंने 2 दिन की मोहलत दी थी, वो तो मोहलत देते रहते इस्तीफ़ा नहीं ले सके? नहीं ले सकते।
ठीक है, उन्होंने ये बयान दिया अगर हम चाहें तो इमरान खान को उनके घर से गिरफ्तार कर लें। घर से गिरफ्तार करना उनके अपने जाती मामला होगा ना, घर के आवाज़ जो लगाया था गो नवाज ये मुंह के नारे हैं, अस्सलाम नहीं वालेकुम। कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। आपको वालेकुम सलाम। जी आप बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दिन की इमरान खान को मोहलत दी थी कि 2 दिन आपके पास इस्तीफा दें, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? देखो बात ये है ना, इस मुल्क के लिए नमाजी परहेजी आदमी हो और वो ये रास्ता बताए बंदे को कि ये करेंगे और गिरफ्तार करेंगे। आप आराम से जो बात करें गवर्नमेंट के साथ करें। अगर वो मुतालबात करना चाहते हैं ना, उनके मानने के हुए तो वो मानेंगे और करेंगे। ठीक है, हुकूमती कमेटी बनी है तो मौलाना साहब ने ये बयान दिया है कि आप हमारे पास आएँ, खान साहब का इस्तीफा लेकर आएँ, इसके बगैर ना आएँ। ऐसे तो नहीं हो सकता जी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अगर ऐसे कोई उतारता तो 2 मिनट में उतार लेता बंदे को। क्या ख्याल है? नहीं, उसे खुद इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, एक मिनट आपकी तरफ आते हैं। मौलाना साहब ने ये बयान दिया कि अगर हम चाहें इमरान खान को जाके उसके घर से गिरफ्तार कर सकते हैं, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? सर ये तो मुंह की बात है ना। देखो ना, एक गवर्नमेंट और फौज भी है, कैसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो हाँ साहब इस्तीफा ले सकते? नहीं, वैसे नहीं हो सकता, पर ये कर मुतालबात उनके कोई हैं तो वो अगर मानने के हुए तो फिर तो अच्छी बात है। अल्लाह करे मुल्क का किसी का नुकसान भी ना हो, किसी का आम नुकसान भी ना हो, किसी आवाम का नुकसान भी ना हो, गाड़ियों माड़ियों का, लोगों का। तो लोग तो वैसे ही परेशान है। कश्मीर का मसला बना हुआ है, अल्लाह करे कश्मीर का मसला हल हो। उधर आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी ये कहता है ऐसे ऐसे, तो अभी रास्ते बंद है, कोई अस्पताल नहीं जा सकता, कोई बीमार को नहीं लेके जा सकता। बात करें मैं कब जीता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि अब हुकूमत हमारे हाथ में होगी, हुकूमत हम चलाएंगे, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? ये टोटल स्टेट है, मौलाना फजल रहमान की हुकूमत चलाएगा। इसने 20,000 लोग इकट्ठे हुए किए कि हम स्टेट को गिराएंगे, हम फलाना करेंगे, हम ये करेंगे, कुछ नहीं। ये नवाज शरीफ और जरदारी का साजिश है कि कर रहे हैं मुल्क में, लेकिन इनका साजिश कामयाब नहीं होगा। ये हमेशा तरह भूखे रहेंगे। परसों इमरान खान ने गिलगित में बोला है, ये सारे चोर कटे हुए फिर भी ये कुछ नहीं कर सके। लेकिन ये इंशाल्लाह कुछ नहीं कर सकते। मौलाना वैसे पागल है। ठीक है, तो मौलाना साहब ने ये जो इमरान खान को 2 दिन की मोहलत दी थी, आज वो मोहलत भी ख़त्म हो जाएगी, इसके हवाले से क्या आगे क्या लामल करेंगे, क्या करेंगे? भाईजान ये उसने बगावत का ऐलान किया। हुकूमत को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके खिलाफ पर्चा करवाए। दहशतगर्दी का पर्चा भी हो सकता है। और ये बगावत करना कोई आसान काम नहीं है कि मौलाना फजल रहमान ने बोल दिया और बस होगी। अभी इमरान खान अगर हुकूमत चाहे तो उसके ऊपर बगावत का पर्चा भी काट सकते हैं। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया कि अगर हम चाहें इमरान खान को उसके घर से गिरफ्तार कर लें, तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? इसी हवाले से बोले इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करते, ये खुद गिरफ्तार हो जाएगा। थोड़े दिन है इसका, आज या परसों इनको डंडे लगेंगे, ये खुद भाग जाएंगे। ये रुकने वाले नहीं है, 1 महीने 2 महीने वाले ये नहीं है कि ये रुक जाएंगे। ठीक है, तो खान साहब का जो धरना था इसके और ये मौलाना साहब का धरना, दोनों के धरने को क्या कंपेयर करते हैं? खान साहब का धरना अच्छा धरना था और उसमें अखलाकी लोग थे। ये तो सारे तालिबान आए हुए इधर बैठे हुए मुल्क पे कब्जा कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान का झंडे भी ला रहे हैं, बीच में TTP का भी झंडे ला रहे हैं। तो ये तो धरना नहीं हुआ ना, वो तो जमहूरियत के अंदर काम कर रहे थे। ये तो सारे गैर जमहूरी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मौलाना के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना सही बंदा नहीं है भाईजान, उसको हम पहचानते। 30 साल से हमने 15 साल से हमने बडग्राम में उसको मुंतखब किया, उसने कुछ नहीं किया, बस खाए पिए जिए। जिस तरह कश्मीर कमेटी का हाल किया उसने, 70 करोड़ का लस्सी भी उसने पिए हुआ है। 70 लाख का 70 लाख का पिया हुआ है। और इसी तरह चेयरमैन था तो 70 लाख का लस्सी पिया था और इधर उधर बहुत गपले उसने किए। अभी बच जाएगा लेकिन बचेगा नहीं। आसान काम नहीं है कि धरना ले आए लोग ले आओ फिर पीछे हटो, ये भी आसान काम नहीं है। अभी ये आगे भी दौड़ेगा और पीछे भी दौड़ेगा, दोनों काम करेगा। अब इन लोगों का भी ज़रूरत है यार।